Hello, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss leadership and social responsibility, and chapter number 2 title is changing nature of leadership, and we are going to discuss the general leadership theories. ABC we have already done it in the previous session, previous video, great man approach, trait approach, and behavior approach, and now remaining theories we are going to discuss: situational, influence, reciprocal, transformational, servant, followership, and emerging leadership. And all these content is taken from the book Exploring Leadership. So what we previously done in the lecture, so we have a quick overview over. First was a great man approach, in which we leadership theorists believe that different theorists believe that leadership are born. We born with some innate unique qualities, and then trait theory. They say that leaderships are not born. Leadership are uh, can be learned. Leaderships are formed, and we can mold and shape the behavior. And then the third approach, which is the behavior theory. Uh, Behavior theory believes that leadership behavior can be taught and behavior can be observed from the environment, and we can be change, we can be transformed from non-leader to leadership skills. And behavior is concerned with the three basic skills: technical, HTC, human, technical, and conceptual, in which the human skill is the most prior, people skills, which is called conceptual skills, depth knowledge about the each and everything, technical skills about the technological, and then we raise a debate uh, from the University of Michigan and Ohio State, uh, employee centered and the production centered leadership behavior is depend on uh, too much concern for the employee and too much concern for the production. So we have a managerial leadership grid, which is presented by Black Mountain. These two dimensions are introduced in Michigan and Ohio State studies. 9,9. These are the X ordinate and the Y ordinate. Concern for the unit and the result, and Y the concern for the people and the employer. 9,9 is the ideal one, which shows the high concern for the people and high concern for the 5,5 is the win-win, half concern for the people and half concern for the employee. And 1,1 no concern, low, very low concern for the people and very low concern for the people. Here is a name of that matrix grid. 9,9 is named as team management, 1,1 is named as impoverished management, very worst one, and 5,5 is named as middle of the road. So this was the previous lecture, and now, so we have a lecture move forward to the next, and which is the contingency theory. And what contingent means? Contingent means, in a simple way, you will understand from that word, nothing is best. There is no one universal best definition or theory to define the leadership. It depends on a situation, on which route, on which way we have to move on. Like we have read, there is an autocratic style of leadership, there is a democratic style of leadership, there is a persuasive style of leadership, and fourth one is the laissez-faire, the free one, जिसे जंगल का कानून आप कहते हैं. अब which leadership style is appropriate? So it depends on the contingent. The contingent situation है, what is the situation, what available resources we have, what kind of employee we are facing,
So it's contingent. It contingent on what? It depends on some situation or event. Then we will decide which one is best, which one is most appropriate. So contingency theory defines different situational factor. It depends on the situation. When we study the situation, so we list down the many factors and then we adopt it. If one thing is good for me, not necessarily is good for you. If one leadership style is good for one nation, then not necessarily the another that style is good for the another nation. When one leadership model is good for one business organization, it is not necessary it is very good for and effective for the other organization. So many versatile factors are many versatile versatility and diversity are there. So situational factor, how they interact with each other, what is the relationship between the leader and the subordinate, employer and the employee relationship, structure and the culture of the organization. All these matter. What is the situation? So, which leadership is the best approach? It will be determined by on the different variables and different factors. So you can also known as you can also call as the this theory as situational leadership. Why we call this situational leadership? Because this leadership model is based on the variant situation. So it's quite simple. It is quite simple. So what kind of situations we have? So here is a table. Situational leadership is built upon the contingency theory, which is presented by Ken Blanchard in 1980, and this leadership is composed of both a directive and supportive, and the autocratic as well as the democratic dimension, and the coaching, the mentoring one, and the delegating, transferring to the other. Both the approaches are using. So we have four style. The first one here is the name of directing, and S2 as a coaching, mentoring, S3 supporting, less talk, less decide, and S4 is delegating one, uh, delegate to other. So here is the four uh, ways and style of leadership. The first, the left hand side, the S3 and the S4 on the y-axis is the supporting one. Supporting and the delegating both are supportive behavior, and the on x-axis delegating and the directing. Here the directing behavior on the right hand side, directing is a high, and on the delegating part, if there is no direction, we delegate the tasks to other. There is a low directive behavior. On the coaching side, high supportive behavior, because leader is willing to give training and give some instructions. So the purpose behind to achieve the task or goal, it depend on it. Which type of goal we have to be achieved, what nature of work or task we want to be achieved. So these are the four adopting style of leadership: uh, directing, coaching, supporting, delegating. So it depend on what? It depend on the different situation. So leadership behavior is directive, supportive, might be participative, might be achieve oriented. It depend on the characteristic of subordinate, and also the second important factor, it depend on the nature and the task characteristics of the task. So that is the motivation to achieve the goals and productivity, as well as to the better relationship with the subordinate. So it's a contingent theory, which kind of behavior the leader have to adopt with the task or the with the subordinates, and how they motivate. So it all are situational. It depend on the situation. So path goal theory developed by Evan House, adopting leadership to that situation. And he said the leader can impact performances of other by offering part to desired goal. How we reach toward that goal. किस तरह से हम इस goal को achieve कर सकेंगे.
रिवॉर्ड मैटर करते हैं कि विच काइंड ऑफ रिवॉर्ड, विच काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस आर देयर। सो कंटीजेंसी ये स्टार्ट है बहुत ही करेक्टर्स हैं। अच्छा जी, डायरेक्टिव गिव स्पेसिफिक गाइडेंस एंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्टिव यानी गाइडेंस भी दे रहे हैं, डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। अच्छा, एक क्या तरीका है सपोर्टिव, जिसमें आपको असिस्टेंस दी जाती है, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हेल्प। अच्छा, पार्टिसिपेटिव जिसमें आपको के साथ इन्वॉल्व है, सबऑर्डिनेट्स भी हैंड टू हैंड। अचीवमेंट ओरिएंटेड जिसमें चैलेंज दे दिए जाते हैं, गोल सेट कर दिए जाते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हायर होती है। बेस्ट स्टाइल टू यूज इज टू अडॉप्ट टू द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, ये मिलजुल कर दोनों काम करें। तो ये आपके सामने ये लीडर्स के बिहेवियर हैं, चारों तरह के लीडरशिप हैं और सिचुएशंस भी हमने सामने रख दी हैं इस टेबल में। सपोर्टिव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कंसर्न फॉर द वेल बीइंग है, एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रख रहे हैं, ओपननेस है, इक्वल ट्रीटमेंट है। तो इससे ये कब होगा, जब फॉलोअर्स लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो हमें ये बिहेवियर रखना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका नतीजा क्या निकलेगा, इससे नतीजा ये निकलेगा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अब सिचुएशन अगर ऐसी है कि एम्बिगियस जॉब है, मतलब क्लियर नहीं है, अनसर्टन है किसका क्या रोल है, कैसे काम होगा, तो फिर डायरेक्टिव, वहाँ कौन सा बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा लीडर्स को, डायरेक्टिव। टास्क डेलीगेट, मतलब डायरेक्शंस देनी है, दे टेल यू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हम क्या मानते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी आपसे क्या नीड्स हैं, आपकी जेडी क्या है, हाउ एंड व्हेन टू डू इट, हाउ फिट्स विद द अदर्स, scheduling, नॉर्म्स, प्रोसीजर, रेगुलेशन, ये कंप्लीटली डायरेक्टिव होगा ताकि आपकी जॉब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट टू डू। तो इसका फॉलोवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका जो पाथ है, गोल पाथ है, वो क्लियर हो जाएगा और वो फिर रिवॉर्ड भी अचीव कर पाएंगे, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, लैक ऑफ जॉब चैलेंज, अगर कोई ऐसा है कि जॉब चैलेंज नहीं लेता, चैलेंजेस, तो फिर अचीवमेंट, डिमांडिंग एंड सपोर्टिंग, चैलेंज गोल करना पड़ेगा जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जाएगी और परफॉर्मेंसेस को हाईएस्ट किया जाएगा ताकि वो उसको इतनी आसानी से अचीव ना करें और एफर्ट्स करें। और कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाएगा उनकी एफर्ट एंड अचीवमेंट में, उनको बड़े से बड़े अवार्ड दिए जाएं और वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर इंक्रीज कराई जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, सेट गोल्स हाई, इस तरह से वो अपने गोल्स को, ड्रीम को हाई करेंगे। अगर रिवॉर्ड इनकरेक्ट है तो फिर वहाँ पे पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, कोच करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना पड़ेगा और सजेशन देने, कंसर्न देखने, इस तरह से उनको डिसीजन मेकिंग में अपने साथ शामिल करना है। तो नतीजा क्या निकलेगा, क्लैरिफाई हो जाएंगे, फॉलोअर्स की नीड्स हमें पता लग जाएंगी और उनके रिवॉर्ड्स भी। Okay, well, so that's all about it. And the next one is, yes, the next one is transformational leadership, transactional and the transformational leadership. It is a new perspective, is a modern perspective, 19th century में develop हुआ ये idea. Transactional means the focus on leaders and the follower relationship. ये दोनों अपनी ट्रांसेक्शन, अपने रिलेशन को बेटर करें। ट्रांसफॉर्मेशनल को आप क्रिस्मेटिक भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो फोकस करता है विजन के ऊपर, पर्पस के ऊपर, मिशन के ऊपर, ठीक है, जो आपको चेंज का फैक्टर डेवलप करता है अपने फॉलोअर्स के अंदर, उनको एक मकसद देता है ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रोथ का पर्पस देता है उनको, उनके अंदर ड्रीम, उनको उनके गोल्स हाई करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेकर आता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है एक सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, ठीक है। इसमें जो परफॉर्मेंसेस होती है वो इम्प्रूव करी जाती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम डेवलप किया जाता है और एम्प्लॉय के दरमियान, लीडर फॉलोअर्स के दरमियान एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप
डेवलप किया जाता है। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का असल मकसद क्या है? उनको हाई मोटिवेट करना, एनर्जेटिक करना, एंथुसिस्टिक करना, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उसको इंक्रीज करना है, उनका मोरल अप करना है, उनको मोटिवेट करना है, और उनको इंडिविजुअल नीड्स के बजाय ग्रुप नीड्स और कॉमन नीड्स की तरफ लाना है कि वो सर्व कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इफ़ यू keep remember the characteristic of transformational leadership, so you will be memorized from the 4 I's. The first I is idealize influence, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो एक विजनरी पर्सन है, जो एक विजन देता है, उसके पास एक मिशन को अचीव करने का वे है, एक प्राइड है, वो एक रिस्पेक्ट और ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होता है और आइडियलाइज इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा आई है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, उसका कम्युनिकेशन जो है, हाई एक्सपेक्टेशंस है, वो कुछ ऐसे सिंबल्स यूज करता है जिससे वो एनर्जाइज करे, एक्सप्रेस करता है इंपॉर्टेंट पर्पस इन अ सिंपल वे, ठीक है, अपने फॉलोअर्स को। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जहानत का इजहार करता है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, रेशनैलिटी, रीजंस का यूज कर रहा है, एंड केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हिच इज गुड फॉर ऑल। The last four, the 4 I is individualized consideration. Consideration, something for something, and give and take. तो लीडर की जो पर्सनल अटेंशन है और वो हर एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली ट्रीट करता है और उसकी कंसिडरेशन सबके साथ अलग अलग है। उनको एडवाइस करना, उनको कोच करना, उनको इंडिविजुअली मिलना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि वो सबको ग्रो कर रहा है, एक एक को इस तरह से उस एक चेंज का फैक्टर जो है वो उसमें डेवलप होता है। तो जो ट्रांसनेशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, तो आपने देखा कि ट्रांसनेशनल लीडर जो है वो रिवॉर्ड और MBO, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, वो लीडर को मोटिवेट कर रहा है, अपने लीडर गाइड करता है, मोटिवेट करता है अपने फॉलोअर को किसी खास किस्म के गोल को अचीव करने के लिए और अपने रोल को क्लैरिफाई करने के लिए, जो एक ट्रांसेक्शन, एक खास रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है उसमें हमने आपको बताया कि ये जो 4 I's हैं, आइडियलाइज, इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, ये वो प्रोवाइड करता है अपने फॉलोअर्स को। इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल इंसाइट और इंडिविजुअल कंसंट्रेशन। Next is E, which is very important, influencing theory. In 1947, Max Weber uses the word charisma. अच्छा, charisma का मतलब होता है कि जो इन्फ्लुएंस करे, जो अपने आप को असरअंदाज करे, अब वो अटायर से हो, नॉलेज से हो, पोजीशन से हो, स्टेटस हो, पावर हो, तो किस्मेटिक पर्सनालिटी जो अपनी तरफ मुतवज्जो करे, अट्रैक्ट करे, जो अपना बहुत ज़्यादा असर और रसूख छोड़े। तो ये मैनेजर कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो करिश्मा से मुराद क्या है? जो डिस्क्राइब अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस बेस्ड नॉट ऑन ट्रेडिशनल पावर और फॉर्मल अथॉरिटी बट रादर ऑन फॉलोअर परसेप्शन दैट लीडर इज एंडोयड विद द एक्सेप्शनल क्वालिटी। तो करिश्मा मैनेजर के पास एक ऐसी एक्सेप्शनल क्वालिटी है जिससे वो यूनिक, वो जिनसे बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाता है, उनसे डिफरेंट हो जाता है और वो अपना एक बहुत गहरा असर रसूख छोड़ता है अपने फॉलोअर्स का, और फॉलोअर्स उसके गिर्द घिरे जाते हैं, उससे मुतासर होते हैं और उसको अपना लीडर मानते ही उस स्पेशल क्वालिटी की वजह से है। और वो एक्सेप्शनल, अब एक्सेप्शनल क्वालिटीज आपका कम्युनिकेशन स्टाइल हो, आपका एथिकल बिहेवियर हो, ठीक है, या आप, हाँ, या आपकी नॉलेज जो है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन नॉलेज, आपका IQ लेवल, कहीं आप इमोशनली साउंड हैं, तो कोई सी एक एक्सेप्शनल क्वालिटी है जो सब में नहीं है, वो बिल्कुल आपको दूसरों से अलग और मुनफरिद कर देती है। और यही अट्रैक्टिव क्वालिटी उन फॉलोअर को अब इन्फ्लुएंस करने का सबब बनती है। इस लीडरशिप को जब भी नाम है इन्फ्लुएंस थ्योरी। ये लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है अपनी कस्मेटिक पर्सनैलिटी से फॉलोअर्स को
और फॉलोअर्स अपने लीडर को मानते हैं उसके उस इन्फ्लुएंस की वजह से, जो उसकी ट्रेड, उसकी क्वालिटी, उसकी उस खूबी की वजह से। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है विच इज रेसिप्रोकल leadership theory. Reciprocal means is a two-way, is a mutual one, where the leader, one side is the leader, the another side is the follower, where the both efforts are fulfilled, where that type of theory leadership is where mutual goals are fulfilled. Both the leader and the follower both have the common goal and they both achieve their goal together. Mutual goal and the motivation of each other. फॉलोअर्स लीडर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, लीडर्स फॉलोअर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, फॉलोअर्स लीडर को अपनी एक एनर्जी से हिम्मत दे रहे हैं, तो लीडर फॉलोअर्स को अपनी उनकी नाकाम पे उनको जो है वो हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। तो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है रेसिप्रोकल लीडरशिप थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जिसमें लीडर और पार्टिसिपेट दोनों ही मीनिंगफुल पर्पस में इंगेज हैं और दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत वैल्यूएबल, जिसमें दोनों शेयर्स करते हैं अपनी पावर, अथॉरिटी, नॉलेज। और यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, नॉलेज हो, स्टेटस हो, पावर हो, मोटिवेशन हो, एनर्जेटिक बिहेवियर हो, मोरल, ये सब लीडर फॉलोअर को और फॉलोअर लीडर को ट्रांसमिट करता है। तभी हम इसको कह रहे हैं रेसिप्रोकल लीडरशिप theory. So these all are the new modern perspective of leadership. Yes, the next one is H, the servant leadership. This one is very popular. This one is very new theory. Leader first, serve. लीडर सर्व फर्स्ट, ये इनका स्लोगन है, लीडर सर्व फर्स्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट तो ये है कि लीडर जो है वो डायरेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, कमांड करेगा और फॉलोअर्स की बात सुनता जाएगा। लेकिन सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी यहाँ पे कहती है कि जो लीडर है वो सबसे पहले सर्व करेगा, अपनी सर्विंग से लोगों को मुतासर करेगा, और जब वो सर्व करेगा तो उसके साथ फॉलोअर्स भी होगा, वो फॉलोअर्स भी सर्व करेंगे। तो वो कहते हैं सर्व फर्स्ट। सर्वेंट लीडरशिप में सर्विंग जो है वो फर्स्ट है, ऐसे लीडर को सर्वेंट लीडर कहते हैं। ऐसा आपने इनिशिएट किया लोकल कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, सोसाइटी में बेटरमेंट लाने के लिए, आपने खुद से इनिशिएटिव लिया, आपने खुद वो काम पहले किया। लेट्स सपोज आपने फ्री एजुकेशन सिस्टम शुरू किया और आप चाहते हैं कि आप इस ऐसी एजुकेशन सिस्टम करें कि जो फ्री सबके लिए जो है वो एक्सेसिबल हो जाए और मोटी मोटी हैवी फीसेस आपको ना देनी पड़े, और जो है वो डिजिटल एरे में, डिजिटल वर्ल्ड में। तो ये आपने कम्युनिटी के लिए सोचा और ऐसा करने में आपने पहला कदम रखा, तो आप सर्वेंट लीडर हो गए, आप सर्व करना चाह रहे हैं फर्स्ट। और इसी तरह के लोग को देख के फिर आपके साथ साथ और भी लोग शामिल हो गए, आपके फॉलोअर्स बन गए कि हमारा भी यही मकसद है और हम भी ऐसे ही चाहते हैं, फ्री एजुकेशन सिस्टम हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पीपल हु डेडिकेट देमसेल्फ टू बिल्डिंग द कम्युनिटी सो इट बिकम अ बेटर प्लेस फॉर अदर, कि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम माशरे को बदल रहे हैं, ये हमारा मकसद है। और हम क्या चाहते हैं, ये दुनिया बेहतर से बेहतर हो जाए, तो इसके लिए हमने अपना पहला कदम, हमने पहला बीज बोया, तो उसको देख के दूसरे भी बनते हैं। तो वो हमेशा ही ऐसा करता रहे, ये नहीं कि वो एक ऐसा लीडर, इसको हम कहेंगे मोरल एंटरप्रेन्योर है, ये एक एथिकल लीडर है, ये एक मोरल लीडर है, ये एक सर्वेंट लीडर है, क्योंकि ये सर्विस दे रहा है, ये सर्व कर रहा है कम्युनिटी को, सर्विसेज को, ऑर्गेनाइजेशन। तो द सर्वेंट थ्रो फोकसिंग ऑन द प्राइमरी नीड्स ऑफ द अदर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, देन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू अ लीडर। और जब वो देखता है कि ये लोगों की ज़रूरतें हैं और मैं इस ज़रूरतों को पूरा करूँगा, और मैं कैसे पूरा करूँगा, उसे एक सिंगल छोटे से एक आइडिया से वो लोगों की मदद करता है, और जब वो लोगों की मदद करता है तो लोग उसके फॉलोअर्स बनते चले जाते हैं।
यूं ना समझो कि हम जरा सी देर का किस्सा है, अब से तुम्हारी हर सोच का हिस्सा है हम। So this is the vision to transform and make influence on the other, and the purpose is that to help the other. कोई एक मदद करने उठता है और बाकी सब उसको देख के मदद करने लगते हैं। और वो लीडर इसलिए है क्योंकि उसने पहला इनिशिएटिव लिया। वो इसलिए लीडर है क्योंकि उसने सबसे पहले वो काम को फॉर्म किया। तो ये जो लीडरशिप है ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालती है। आज जिसने सोशल एक्टिविस्ट हैं या कम्युनिटी में सर्व करने की बात करते हैं तो वो भी एक लीडर है, और उन्होंने अपना एक असरअंदाज किया है माशरे को, सोसाइटी को, और फिर उनको देख के दूसरे लोग भी फॉलोअर बन गए, उनको वैसा ही करते चले आए और उनके पीछे पीछे चलते चले आए। तो वो सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी उनके ऊपर अप्लाई होती है, और ऐसे लीडर को हम सर्वेंट लीडर कहेंगे क्योंकि वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो सर्व कर रहे हैं। और ये उनकी जो सर्विंग एबिलिटी है यही उनको लीडरशिप बना रही है, और फॉलोअर्स भी उनके पीछे सिर्फ उनकी सर्विंग एबिलिटी की वजह से। तो ये थ्योरी बहुत क्लस्टर कलर है जी। द फॉलोअरशिप थ्योरी देखें कम्प्लीटली ये रेसिप्रोकल हो गया कि लीडरशिप थ्योरी, लीडरशिप डिस्कशन हो रहे हैं, लीडरशिप कैसे हो, लीडर कैसे हो, लेकिन ये जो पूरा इस थ्योरी का फोकस है वो किस पर है? फॉलोअरशिप पर है। कि हमें ये देखना पड़ेगा कि फॉलोअर्स अगर हमें लॉयल मिल जाए, कमिटेड मिल जाए, ऑनेस्ट मिल जाए, बहादुर मिल जाए, तो फिर लीडरशिप का प्रोसेस जो है वो अलाइव होगा। और जो फॉलोअर हो कमिटेड हो किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके गोल के साथ, उसके उसूलों के साथ, उसकी वैल्यू, कोर वैल्यूज़ के साथ। देखिए जब बड़े बड़े इदारे हमने देखे 100-100 साल गुजर जाते हैं, लेकिन जब उनका इनिशिएट लेते हैं तो उन्होंने अपनी कोर वैल्यूज़ लिखी होती है, और वो गुजर जाने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं शायद वो फिर उस बात को आगे नहीं लेके जाते, और वो इदारा पे हमें नज़र तो आता है मगर उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ लिखी हुई नज़र आती हैं उसके वेबसाइट पे, उसके फ्लायर पे, उसके स्लोगन में, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। लेकिन लीडर वो होता है जो उसके एक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं, तो फिर वो कोई टैग बन जाते हैं, वो वर्ड्स बन जाते हैं। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि फॉलोअरशिप क्या है? कि फॉलोअर्स को देख रहे हैं कि फॉलोअर्स कितने कमिटेड है, उनका पर्पस, उनका प्रिंसिपल, पर्सन वो उनके साथ कितने कमिटेड है। तो फॉलोअरशिप के लिए कुछ डायमेंशन है कि वो इंडिपेंडेंट हो, क्रिटिकल थिंकर हो, उनके पास सोच समझने की सलाहियत हो, और ये डिपेंड करता है किस तरह का फॉलोअर्स है हमारे पास। डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्रिटिकल थिंकर, अनक्रिटिकल थिंकर है, सेपरेटेड है, शी यस पीपल वाले हैं, नो पीपल वाले हैं, और जो है वो नॉन सर्वाइवर वाले हैं, डिपेंडेंट हैं, इफेक्टिव हैं, इनइफेक्टिव हैं। तो ये लीडरशिप जो है डिपेंड करती है कि विच टाइप ऑफ फॉलोअर यू हैव, किस तरह के फॉलोअर्स हैं आप। जैसे मैंने एक थ्योरी में कहा कि हर शख्स को अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल ही जाते हैं, तो फिर वो लीडर भी बेवकूफ़ कहलाएगा, और वो जो फॉलोअर्स ही बेवकूफ़ हैं तो फिर वो बेवकूफ़ लीडरशिप बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई लीडर जैसा खुद लीडर है वो अगर ब्रेव है, करेज है, क्रिटिकल थिंकर है, और जो है वो इफेक्टिवनेस है उसके अंदर, स्मार्टनेस है, तो वो चाहेगा उसके फॉलोअर्स में भी वो चीज़ ट्रांसफर हो। लेकिन देखें अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो लीडर होता है वो डोमिनेटिंग वन होता है, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और उनमें कोई ना कोई खामी होती है, लीडर उनको फुलफिल भी नहीं करता कि कहीं वो फिर उसको समझ ही आ जाएगी, तो फिर वो कहाँ से मेरा लीडर है फॉलो करेगा। तो फॉलोअरशिप जो है वो ये जो फॉलोअरशिप थ्योरी यही है कि फॉलोअर्स जितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, फॉलोअरशिप कितने अवेयर हैं, उनकी लर्निंग क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए, ये डिपेंड करती है कि लीडरशिप भी कैसी होगी। तो ये थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अच्छा, आपने फर्दर डिटेल के लिए एक और ज़बरदस्त सी मैं आपको बुक बताता हूँ, नॉर्थ हाउस की लीडरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अच्छा, ये पूरी बुक ही लीडरशिप थ्योरीज के ऊपर है। मैनी थ्योरीज आर देयर, और उसके सब डिविजन्स है, और बहुत बहुत वेल एक्सप्लेन किया हुआ गया डिफरेंट एग्जांपल के साथ। अगर आपको मोर कंटेंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप पे, ये तो हमारा एक सेशन था क्योंकि आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 लीडरशिप थ्योरी।
तो ये आप जो है लीडरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस इसको आप देख सकते हैं, और इसकी जो है वो PDF ई बुक भी मौजूद है। मैं गूगल क्लासरूम में इसको शेयर भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास ड्राइव में अवेलेबल है। लीडरशिप थ्योरी प्रैक्टिस जो है ये बहुत हेल्पफुल है फॉर दिस कॉन्सेप्ट। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी अगर बात करें तो दिस टॉपिक कंटेन द मोस्ट ऑफ द वेटेज, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, तो कोई ना कोई एक थ्योरी जो ज़रूर एग्जामिन हो जाती है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आपकी मेमोरी भी चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट? ग्रेट मैन अप्रोच। So this one is from the chapter number 2, जनरेशन ऑफ लीडरशिप थ्योरी। फर्स्ट क्लिक किया तो हमने ग्रेट मैन अप्रोच पे। ग्रेट मैन अप्रोच क्या कहती है? लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, everyone is born with some unique qualities and we cannot build up। अगर हम वो adopt करेंगे तो we cannot be become a leader। leaders are born only, we have to be just discover। सेकेंड अप्रोच क्या थी? ट्रेट अप्रोच, सिफात, खूबी। Everyone is born with the some unique qualities. So leaders are not born, leaders are made, and these qualities can be learned, can be observed, can be trained to the other also। ये trait approach है। Behavior approach, uh, behavior of the leaders can be taught, can be changed। और बिहेवियर अप्रोच में फिर हमने मिशिगन ओहियो स्टेट्स को देखा, टू मच कंसर्न फॉर द पीपल एंड टू मच कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन। ये दो हमें अप्रोच, दो बिहेवियर नज़र आते हैं लीडर्स के। सम लीडर्स आर वेरी मच कंसर्न विद द प्रोडक्शन यूनिट्स, कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, वॉट एवर द केस इट इज़, मुझे यूनिट्स चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए। एंड सम लीडर्स of the organization are concerned for the employer, कि एम्प्लॉयर के साथ अच्छा रिलेशन रहे, बर्ताव रहे, उनका दिल ना टूटे, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, उनको हम नहीं जाने दें। वो एम्प्लॉय को कंसर्न करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, सिचुएशनल कॉन्टीजेंसी अप्रोच में हमने क्या देखा? अच्छा, कंटीजेंसी अप्रोच इज आल्सो नोन एज अ सिचुएशनल अप्रोच। अगर सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात की जाए या कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात की जाए तो बोथ आर द सेम। Contingent theory is say that it depends on the situation and there is no one best definition। We have variant type of leadership style like autocratic, democratic, persuasive, laissez-faire, and it is also with the other name: directing, supporting, coaching, achievement। So it depends which type of style we have to be adopt. It depends on the situation. Situation tells you which one is the best formula. So there is no one best approach to use. It depends on the situation. It is contingent on the different factor. That's why it's called as the situational leadership। Okay, influence theory, uh, as the name of the leadership theory is influence theory। So a leader makes some influence on the followers by their some charismatic personality, and from this influence followers they obey the command and follow them। Reciprocal leadership, the two-way is a two-way, is a exchange of the mutual respect, the mutual goal, mutual achievement। So reciprocal leadership is power sharing of power and authority between both of them, the leader and the participant। Transformational leadership, transformation means a change। Transformational leadership bring motivation, energize, to train them and to make the follower a better one than as before। So he transformed the followers, and transformational leadership has a purpose to give vision, to give mission, they give energize, they lift up the morale of the participant। Servant leadership is very interesting in the contemporary world। Servant leadership begins with serve first। लीडरशिप थ्योरी इज सेड सर्व, लीडर सर्व फर्स्ट। जो लीडर है वो पहले काम करेगा, वो इनिशिएट करेगा, और लोकल कम्युनिटीज की हेल्प करने में दे ऑलवेज फुलफिल द नीड्स ऑफ अदर, एंड दिस लीडरशिप इज बाय सर्विंग द अदर।
Followership theory is doing research and study on the followership rather than on the leadership, and they conclude that that leadership process or method is depend on the which type of follower we have. It depend on the attributes and quality of a followership कि वो critical है क्या uncritical है, वो effective है ineffective है, dependent है independent है. So it depends on the type of followership. So we have to be focused on the followership as well. If you want to be a leader of this, so हमें फिर follower को भी upgrade करना पड़ेगा. Then we'll become a leader of them. Emerging leadership paradigm. Emerging leadership paradigm. Uh, here, emerging leadership paradigm has new concept of leadership out there. Many new concept of leadership are there, just like that. Yes, in 20th century, many multiple ideas are emerged in leadership paradigm, functionalist, structuralist, management oriented, personality influence, goal achievement, dominated, self-interested. Many multiple emerging new ideas are in 21st century, 20th century are emerging with the new concept of leadership. तो इमर्जिंग लीडरशिप पैराडाइम क्या है कि वक्त के साथ साथ ज़माने के साथ साथ नत नए जिद्दत इनोवेशन आती जा रही है लीडरशिप के अंदर, और उसमें हमें नई नई फॉर्म्स हमें लीडरशिप की नज़र आती है. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट today's lecture. Thank you for the session. I hope you will be better understand this lecture. Now we will end up the chapter number 2, changing nature of leadership, and cover the many generation of leadership theories. I hope you will be better understand this lecture. Take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz. We will meet in the next session.